how you choose your guru that decides your life. महाभारत समय पे युधिष्ठिर नाम का भी एक आदमी था। मैं सारे भाइयों से बड़ा हूँ, मैं ही राजा हो जाऊंगा, बहुत छोटा बचपन में फिक्स हो गया। Everybody believes they are going to be absolutely fantastic. गुरु के साथ, मेंटर के साथ जीना is the more their influence is on you, the less your individuality will have a scope of expression. हम हर झाड़, हर पत्थर, हर चीज को हम पूजा इसीलिए करते हैं, हम पत्थर को पूजा नहीं कर रहे, हम इंटेलिजेंस को पूजा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इंस्पायर्स यू बट कैनॉट। All of us love Krishna, Rama, but when it comes to raising our own bar, we come with various excuses. दुनिया सीधा दिखता है, हर जो बात सीधा दिखता है वो टेढ़ा है, और हर जो टेढ़ी चीज है वो फाइनली सीधा हो जाती है। भगवत गीता में एक हर चीज, दुनिया के हर चीज का आंसर है। फाइनली युद्ध के बीच में क्या कनेक्शन है? यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंटेलिजेंट पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। Pranam Guruji. My question is, I have experienced the power of the tantras which you give us. I tried connecting with you one day. I felt the flow of energy, and my question is, like, when you are there, when we can connect with you directly, why do we need the tantras? Like, how do they help us? Good. Thank you. So fundamentally, what is the difference between connecting to the Guru and connecting to the Devi? You have to understand one important factor. Fundamentally, there is no big difference. Sanatan Dharma insisted on this one point: how you choose your Guru, that decides your life. How you choose your mentor. The point is, we don't choose our mother and father. But every child has to be consciously made aware of this one important fact. You don't choose your mother and father consciously. You don't choose your sisters or brothers consciously. But you continue to choose your destiny consciously. Now, in the event of an absence of a conscious effort to choose, you have unconscious choice that runs forward, and that unconscious choice was from parents. You receive brother and sister, and from there you receive mentors. Parents ही बताएंगे ये तुम्हारा mentor. So बचपन में बता देते you have to become a doctor. डायरेक्ट नहीं बताते तो भी वो माहौल ऐसा बन जाता है कि the child aspires to become a doctor, child aspires to become engineer, IIT. All aspirations are set for the family background and context. But as the child grows and becomes adult, some these days in the age of 30 or 25, 35, 40, they actively try to seek a mentor. Some try to seek a spiritual guru. Some try to seek a business guru. Some try to seek some friend as some person as a mentor. एंड उनको उनसे इंस्पायर होते हैं और उस इंस्पायर होके इन्फ्लुएंस होके उस दिशा में जाते हैं। बट ये गुरु, ये मेंटर एक प्रॉब्लम है। द मोर देयर इन्फ्लुएंस इज ऑन यू, द लेस योर इंडिविजुअलिटी विल हैव ए स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग माउल्डेड इन द गुरु's फॉर्मेट. इट्स अ वेरी Sanatan Dharma insists on this. Nama gives you jnana, but the jnana should lead to prajnana. But what really happens is, Nama or any word of the Guru, Guru Vak, gives you jnana. Jnana should lead you to Paravak या प्रज्ञानम. एक आदमी है जिसको महीने को 2 लाख रुपए सैलरी है. 35 ईयर्स की उम्र में वो थक जाता है. 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने को, और 1.5 लाख EMI और घर के खर्चे हो रहे, और 50,000 कुछ फ्यूचर चीज़ों, बचता कुछ नहीं है हाथ में एट द एंड. समथिंग लाइक दैट. ही नो ही इज इरिटेटेड विद हिज लाइफ ऑफ लिविंग. He seeks a business mentor or he seeks a spiritual guru. How to experience peace? How to experience my inner infinite potential? How to experience
moksha, how to experience growth. Various reasons. एक को एक. Sanatana Dharma said, Guru is a person who gives you experience of growth and moksha. It is not about God. It is not about God. Now, you asked what is the difference between connecting to the God and connecting to the Guru. So, I have to give you comprehensive answer. I can't give shortcuts. So, I will tell you the whole difference of mentoring, how to choose mentoring. You understand? And how this God and Gurus are separate. In spite of connecting to the Guru, you experience that flow. Then why Guru asks you to connect to God? All this we need to understand in detail. So, what really happens is, see, if it is very easy to go buy a Krishna Murti, लॉर्ड कृष्णास का मूर्ति, एंड घर में उसको एक अच्छी जगह स्थापना करके उसके ऊपर धूपा दीपा लगा के, फूल लगा के, रोज़ उसके सामने दिया लगा के, रोज़ उसको प्रसाद चढ़ा के, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, ये बोलना बहुत आसान, लेकिन हमें देखना चाहिए ये महाभारत समय पे अर्जुना नाम का एक आदमी भी था, अच्छा राजा था, राजा इन द सेंस प्रिंस था, अच्छा था, लाइफ सेट था, सब मस्ती था, गुरुकुल में साधना कर रहा था। हाँ, दुर्योधन नाम का और एक प्रिंस था, वो उसके पीछे कुछ षड्यंत्र करने जा रहा था, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो लाइफ मस्त हो रहा है, लाइफ मस्त है, लाइफ मस्त है, लाइफ मस्त है चल रहा था। युधिष्ठिर नाम का भी एक आदमी था, इग्नोरेंस इज ब्लिस, उसको पता नहीं था कि आगे क्या तकलीफ आने वाला है। मैं सारे भाइयों से बड़ा हूँ, मैं ही राजा हो जाऊँगा, बचपन में बहुत छोटा बचपन में फिक्स हो गया, उसको पता नहीं था कि क्या डिफिकल्टीज आने वाले हैं। एवरीबडी बिलीव्स दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो दिस फेलो वाज आल्सो बिलीविंग दैट दादाजी है ब्रह्मा, भीष्म पितामह, और वो अपने आप को गद्दी चाहते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगती है, आधा सेकंड पौना सेकंड, फिर भी उसने गद्दी छोड़ के धर्म के लिए कर रहा है। सो ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे सारे भाइयों में बड़े भाई को ही राज्य मिलेगा, डिस्कशन इज ओवर, धर्म ही है, तो धर्म के हिसाब से चलेगा। और मुझे, मैं राजा हूँ बोल के नहीं करना चाहिए, सारे भाई को इक्वल रेस्पेक्ट देना है, सारे लोगों को प्यार करना है। सो बीइंग द राजा, ऑल रूल्स एवरीथिंग है, सब मस्त था। सडनली कृष्णा नाम का एक भाई साहब से उसको परिचय हो गया, और बाद में पता चला कि ये हम तो सगे संबंधी है, बुआ का बेटा, ये बेटा वो बेटा। भैया जिस दिन से कृष्ण संगत आना स्टार्ट, उसी दिन से तकलीफ आना स्टार्ट। अरे उस दिन उसके कृष्ण की वजह से नहीं आया, तकलीफ आने से एक दिन या कुछ दिन पहले ये कृष्ण भाई साहब एंटर द ड्रैगन। और आपको पता ही है, एंटर द ड्रैगन में ओनली फाइट होता है, फाइट होता है और फाइट होता है, क्लाइमैक्स भी फाइट ही होता है और कुछ बचता नहीं है स्टोरी। ये कृष्ण भाई साहब जैसे ही एंटर द ड्रैगन, ओनली फाइट फाइट फाइट, and all through the fight, this Dharmaraja or Arjuna never had a moment of peace in their life. Are you understanding? Moment of peace in their life. It was always struggle and always difficult choices. राम भक्ति, घर में मूर्ति राम की स्थापना करो, राम 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 करना बहुत आसान, और फिर भक्ति राम 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 भजन करते, आहा राम कितना महान, राम राम राम, राम धर्म, राम ग्रेट, राम मस्त बोलना आसान। बट इफ यू ऑब्जर्व रामायण प्रॉपरली, रामा not only lived for dharma, he lived for personal excellence, personal growth. Are you understanding? Personal growth అంటే Rama could not grow, Rama is excellent na, Ramo vigrahavan dharma, वो सब है। But if you understand, Rama was somebody who was always personally scrutinizing, criticizing, and always trying to raise his own bar in his own life. Yes or no? Are you understanding what I am trying to say? So Krishna was also like that. Now all of us love Krishna, Rama, but when it comes to raising our own bar, we come with various excuses.
You and your wife do not have a fantastic relationship. कोई बात नहीं, घर में थोड़े पैसे 2 लाख तो आ रहे, हाँ कृष्ण मूर्ति लगाओ, हरे कृष्णा 2 घंटे टाइम बिताओ, बाकी टाइम ऑफिस जाओ, बाकी टाइम घर सोना ये सब करो, टाइम पास हो गया, चलो चलो हो गया. There is no plan. If you live with Krishna, you always lived for the plan, you always lived for the purpose, you always lived for excellence, and you always lived for difficult choices which lead to eternal happiness. So guru के साथ, mentor के साथ जीना is a rough patch life. Are you understanding? For example, Sai Baba जब जिंदा था, शिरडी Sai Baba, very few people realized him as a guru, though he has done so many miracles. अब miracle से गुरु की कोई पहचान होती है? I don't believe that, because whatever happens happens. Now why am I trying to tell you? After that there is a branding strategy. शिरडी के बाबा 2-4 मूवी, बॉलीवुड मूवीज लगाओ, 2-4 ये लगाओ, एवरीथिंग इज ए, सडनली एक के बाद बैक टू बैक बॉलीवुड मूवीज आते शिरडी साई बाबा. अभी नहीं आ रहे आजकल, एंड क्योंकि ब्रांडिंग एस्टेब्लिश्ड. माँ शेरों वाली की भी, संतोषी माँ ओरिजिनली डजंट, अरे शी एग्जिस्ट बट यू अंडरस्टैंड, संतोषी माँ आपने देखा होगा, चंद्रघंटा, कुष्मांडा या हम शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी वो सब हम देख रहे, उसमें संतोषी माँ है ही नहीं है. या कोई भी अवतार 10 महाविद्या में या कोई श्री विद्या में संतोषी माँ की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये नहीं है. बट संतोषी माँ का एक बॉलीवुड मूवी निकालो, एक ब्रांडिंग करो, एक इसका श्राइन करो, उसमें एक विधि लगाओ, एक तंत्र लगाओ, उसमें नींबू का मत खाओ बोलो, उसका एक प्रोसेस लगाओ, उसका एक करो, कुछ दिन ब्रांड एक्सरसाइज अच्छे से करो, उसके बाद छोड़ दो तो भी वो ब्रांड स्टेज फॉर एवर. सनातन धर्म इंसिस्ट ऑन दिस, गॉड इज मैन्स मेकिंग. वाई? दैट इज द रीजन वाई हम हर झाड़ को पूजा करते हैं, हर पत्थर के ऊपर हम पूजा करते हैं. तो आप लोग ना पेगन्स हो बोल के हमें बताते नहीं. हम हर झाड़, हर पत्थर, हर चीज को हम पूजा इसीलिए करते हैं, हम पत्थर को पूजा नहीं कर रहे, हम इंटेलिजेंस को पूजा कर रहे हैं. ऐसा कैसे बोलो तो, सी हाउ दिस बॉडी इज कंज्यूमिंग रोटी एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी कॉन्शियसली वी डोंट नो. साइंटिस्ट ने पढ़ाई किया है और वो लोग भी मानते हैं हमने आधा ही पढ़ा किया भैया, आधा हमें नहीं पता. सो वैसे झाड़, पत्थर, इतना बड़ा पत्थर को कृष्णास बटरबॉल एग्जाम्पल लेते हैं हम. कोई तो पहाड़ के ऊपर कोई पत्थर ऐसा खड़ी है तो उसको हम बताते हैं कृष्ण का बटर का बॉल है, वो ऐसा बड़ा हो गया. तो सुन के क्रिटिसाइज करने वाले तो क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हें नहीं दिख रहा है वो ग्रेनाइट है बोल के, तो कृष्णा का बटर ग्रेनाइट हो गया और वो भी ऐसा ये. और ऊपर से कोई भी आदमी बटर खाने में शौक रखने वाला है बच्चा, वो कोई बाहर रोड पे, बाहर जमीन के ऊपर ग्रेनाइट के ऊपर क्यों रखेगा? नहीं रखेगा. आप अपनी रोटी जाके रोड के साइड पत्थर के ऊपर लगा के आ जाओगे? नहीं. तो वो क्यों? क्रिटिसाइज करने वाले तो क्रिटिसाइज कर सकते, but the idea behind converting or trying to say that it is Krishna's butterball is originally, see, इतना बड़ा पत्थर को तुम बहुत ही छोटे कॉन्फ़िगरेशन में, छोटे छोटे पत्थरों के सपोर्ट में उसको तुम एक स्लैंटिंग जगह पे रखो और उसको हाथियों से खींचने की भी कोशिश करो. ब्रिटिश लोगों ने ट्राई किया था तो भी नहीं हिला. वैसे तुम लगा के दिखाओ. इंजीनियर्स आजकल, you build a building like that, you build a huge structure on a slanting structure without much support, बना के दिखाओ. अंडे नो दैट इंजीनियरिंग के लिए करोड़ों खर्च हो जाएंगे, नीचे से ये करना पड़ेगा, ऊपर से. इन स्पाइट ऑफ इट ऑल्सो इट विल नॉट बी स्टिल. फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में व्हेन दे मेड बेरिना बे सैंड्स, हाइट वाला सब, हवा के वजह से जो बिल्डिंग में वाइब्रेशन आएगा उसके वजह से अगर स्विमिंग पूल बनेगा तो टूटेगा ही टूटेगा बोल के हाफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद पता चला उन लोगों को. सच्चे मेरीना बे सैंड्स की बिल्डिंग आधा बन गई, आधा बनने के बाद उन लोगों को समझ आया कि अभी ऊपर स्विमिंग पूल बनाना है, अगर बनाया तो टूट जाएगा, टूटेगा नहीं, पूरा बिल्डिंग नीचे गिर जाएगा. फिर पूरे पैसे खर्च करके बिल्डिंग रीडिजाइन करके, करोड़ों रुपए खर्च करके दे रीडिजाइंड एवरीथिंग. So
एक इतना सा मंजिल बनाने के लिए हमारे को इतने करोड़ों खर्च हो जाते हैं, इतना हंगामा है। इफ यू सी मेरीना बे सैंड्स, आज भी हम टूरिज्म में जाके देख के आते हैं, क्यों? इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल, इंटेलिजेंस। तुम सिंगापुर जाके मेरीना बे सैंड्स देख के खुश होके आ सकते हो, क्यों? इंटेलिजेंस देख के खुश हो रहे हो। तुम ऑर्किड्स बाय द बे देख के खुश होते हो, इंटेलिजेंस देख के खुश हो रहे हो। कोई भी चीज देख के तुम खुश क्यों होते हो? हम्पी जाके, अभी खंडर है एक्चुअली, एक समय पे एक देदीप्यमान दिव्य जगत था, क्या देख रहे हो? यू आर सीइंग इंटेलिजेंस। बट इंटेलिजेंस आज इंस्पायर्स यू बट कैनॉट मोटिवेट यू। Guru is that hard substance where he motivates you, and intelligence, it is very difficult for Guru, a live Guru, to inspire you. Sai Baba jab jinda the, ya मैं भी, when a Guru is alive, he is always criticized. When a Guru is not there, blindly he is accepted as intelligence. अभी फॉर एग्जाम्पल साई बाबा फटे कपड़े क्यों पहना, भीख क्यों मांग रहा है, nobody questions, everybody supports it. In fact, people ask normal gurus also, now you also go beg because he begged. Huh? Manik Prabhu lived like a king. Why don't you say then live like a king? Gurus matlab Sai Baba jaisa hona chahiye. No. Our guru, there are many gurus who lived like Sai Baba. Our many gurus who lived like a king. Example, my favorite Guru Govind Singh Sahab, my personal favorite. Lived like a Raja. All true. हाँ, lived like a warrior, but lived like a Raja. Lived like a yogi. Lived like personal excellence. Now, why am I trying to tell you? वो example क्यों नहीं लेते हैं? Conveniently हमारा ऐसा. Gurus, any life form, the intelligence is shrouded by Maya. So, Gurus can motivate you, but intelligence cannot be inspired. It's difficult. So, Guru और दैव, माता पिता गुरु दैवम, हमारे को सनातन धर्म में बोलते हैं। फिर बाद में बोलते हैं सारे चीज़ों से नंबर 1 आता है गुरु। इट्स सो कंफ्यूजिंग. दैट इज द रीजन वाई सनातन धर्म, बिकॉज इट इज सो इंटेलेक्चुअली हाई एंड रिच, अंडरस्टैंडिंग इट ऑल्सो यू नीड ए एलिवेटेड सेंस ऑफ डिसर्नमेंट, एंड सो इट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन. जी, रिलीजन बोले तो बेइज्जती हो गया. इट्स द मोस्ट misunderstood divine way of life. Hinduism is a religion. Sanatana Dharma was never a religion, because fundamentally Sanatana Dharma can be summed up in only 3 or 4 words. Tattvamasi, Prajnanam Brahma, 2 words. I am Atma Brahma, 3 words. Aham Brahmasmi, 2 words. Sarvam Khalvidam Brahma, 4 words. So anywhere from 2 to 4 you can sum up Sanatana Dharma. तो सनातन धर्म क्या है? अंटे सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है, बहुत सारे लेक्चर देते रहते आजकल. नो, सनातन धर्म कैन बी सम्ड अप इन 2 words or 4 words. सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, और अहम ब्रह्मास्मि, और तत्वम असि. Am I clear with you? Or if you want the 4th word and all that, Mama Atmaya Namaha, all this Sarvam Khalvidam Brahma technically happens to be 4 words, technically, and Mama Atmaya Namaha also. So basically at a Grandhi Sandhi हो गए, so जो भी whatever, but still एक word तो हो जाती है. Max 3 words, anywhere from 2 to 3. पक्का grammar हटाओगे तो 2 to 3 words में खत्म हो गया सनातन धर्म का sum up. एंड दैट को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा मैं बताया, मांडुक्य उपनिषद इज द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट उपनिषद. हमारे उपनिषद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 12 मंत्र वर्ण, 18 मंत्र वर्ण, ऐसे मंत्र वर्ण बहुत छोटे छोटे भी है, लेकिन उसको हमारे ग्रेटेस्ट गुरु गौड़पादाचार्य ने कारिका लिखा, और उसके वजह से वो लॉन्गेस्ट बिगेस्ट उपनिषद हो गया. एक्सप्लेनेशन, यू अंडरस्टैंड? जब 2 वर्ड्स में तुम सब कुछ बता देते हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखना पड़ता है, तब भी समझ नहीं आएगा. सो आदि शंकराचार्य ने उन कारिकों को भी भाष्य लिखा. सो फाइनली मांडुक्य उपनिषद, उसका कारिका, उसका भाष्य, ये सब मिला के बहुत बड़ा हो गया.
बताया गया है शॉर्ट में. So guru is somebody who inspires or motivates you and in action. And it is a tough life. Tough life. These days gurus are changing, but then originally from Sanatana Dharma, guru is a person who gives you a tough life. God is a, ऐसा बोल सकते हैं with some respect. God is a entity which you are utilizing to awe-inspire you to reach your own inner excellence. So, in short बताऊं तो Guru is like food, God is like water. To metabolize your food, you need water. But plain water cannot push you long. But with water you can live. With pure water you can live, but cannot live effectively. With only food you can live effectively, but not function properly. There is a difference. Are you able to understand? So, Guru is like food. Are you understanding? He will give you some intention, he will give you some guidance, but that guidance has to be processed. And to process the information, you need some awe-inspiring, not just continuous plain motivation energy. You need a certain amount of parallel effort of cooling your system, inspiring yourself with some aha effect. That is the reason why, if you see our Guru Granth Sahib or our Sri Vidya Upasana, or our Sanatan Dharma had no many processes, only 3 processes. तुम कोई भी मुमुक्षु हो या inner excellence चाहते हो, so you are not supposed to do this and that and this and that. You are supposed to read Upanishads. बहुत सारे लोग ये उपनिषद्स को वेदों का पाठ बताते हैं. नहीं, वेदांता यानी वेद का जूस, वेद का एंड. वेद ने क्या बताया रे, समझना मुश्किल है, क्योंकि वेद वांग्मय जो है वो पूछो मत, बहुत ज़्यादा बड़ा है. अरे वेद पंडित भी बोलते हैं मेरे को वेद आता है, लेकिन उनको भी पता है कि वेद आना कुछ नहीं होता है. वेद इस अनंत साधना करते रहना है. हाँ, तुम्हें समझ आने के लिए वेद आता है बोलते वो लोग. जो वेद पंडित है उसको समझ आता है भैया वेद आना कुछ नहीं होता है. वेद इज ए, एंड इट्स लाइक मेडिसिन. आफ्टर ऑल मेडिसिन ही आता है बोल के कोई नहीं बोल सकता है. मेडिसिन इज समथिंग दैट यू कीप लर्निंग, राइट? आफ्टर ऑल सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट आता है. यू कैंट से आई नो सॉफ्टवेयर. You know one bit of thing. In that also updates are coming which you are not aware. The entire software quote and quote, anything that qualifies as software एक इंसान को आता है. Anything that qualifies as a software एक इंसान को आना कितना मुश्किल. आफ्टर सॉफ्टवेयर ही नहीं आती है तो वेद कहाँ से आती? जो भगवान, जो एग्जिस्टेंस, इंटेलिजेंस का निश्वास है, उच्छ्वास निश्वास है. सो वेदों को, वेद पंडितों को पता है बात, लेकिन साधारण प्रजा को समझाने के लिए आता है भैया बोलते हैं. नाउ सो इतना वेद ये सब कब पढ़ के समझूंगा वैसा मैं बोले तो इतना मत पढ़ो. उसका जूस, उसका एसेंस, उस वेद ने क्या बोला, वेदांत इतना पढ़ा. क्योंकि वेदों में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, और पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल आज आते समय मैं वही बोल रहा था, शुद्ध विद्या कुरांकारा द्विजपंथी द्वयोज्वला. माता का जो दांत है वो शुद्ध विद्या के रूप में, अभी षोडशाक्षरी अंडे 32 दांत रहते हैं ना, तो इसीलिए एक एक बीजाक्षर एक एक दांत जैसा है. अंडे 2 लेयर्स में है, एक षोडशी ऊपर, नीचे एक षोडशी, 32 बीजाक्षर से दांत सफेद और मोती की तरह प्योर है. द्वयोज्वला, शाइनिंग ब्राइट वाइट टीथ. जगन माता वाइट नहीं बोला बट स्टिल शाइनिंग टीथ हो गया. नित्य चांबूल चरवण प्रिया कौन बोला भैया? एक आदमी सुबह से लेके शाम तक पान के पत्ते चबा रहा है. उस आदमी के दांत सफेद चमकते हुए कैसे? व्हाट इज दैट?
लॉजिक अराउंड इट। एक जगह से बोलते हैं नित्य तांबूल चरवण प्रिय, जगन्माता को कंटिन्यूअसली तांबूल खाते रहती है। एक जगह बोलते हैं हा हा हु मुखस्तुत्य, हा हा हु। अब माता हा हा हु करते रहती है या तांबूल चबाती रहती है या सफेद मोतियों की तरह चमकने वाला 32 दांत है? ये तीनों में देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं, ज्ञान तरीके से अच्छे से तंत्र विद्या को साधना करे सो वाले को समझ आता है, नो कॉन्ट्रडिक्शन व्हाटसोएवर। सी दैट इज हाउ इट इज। सिंपल लैंग्वेज में आई कॉल यू, यू आर वेरी गुड, अभी तुम खुश हो जाओगे एंड इट इज ए प्लेन स्टेटमेंट। बट डोंट यू नो देर आर सो मेनी एलिमेंट्स विद इन यू विच आर नॉट दैट गुड। You yourself to your own self many times have you not said I am not that good? But when I say you are good, you get happy and you feel it's a plain statement which is not debatable. But you continuously tend to debate it. No? So Sanatan Dharma says, भैया दुनिया सीधा दिखता है, तुम ना पेपर पे सीधा लाइन ड्रॉ करोगे तो तुम्हें सीधा स्केल पकड़ के पेपर पे लाइन ड्रॉ करो तो तुम्हारे को लगता है वो सीधा है। लेकिन सच बता रहा हूं, when you तुम मार्स, नेपट्यून, प्लूटो में जाके अगर इफ यू डेवलप ए टेक्नोलॉजी टू वॉच दैट लाइन दैट यू हैव ड्रॉन ऑन द पेपर ऑन द अर्थ, देन यू विल फाइंड इट एज कर्व्ड। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा हो गया है बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड विथ कॉमन सेंस। दुनिया सीधा दिखता है, हर जो बात सीधा दिखता है वो टेढ़ा है, और हर जो टेढ़ी चीज है वो फाइनली सीधा हो जाती है। ये इसीलिए सनातन धर्म में ये पूछा गया, ये जगत है या नहीं है। चारवाका, सांख्या दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सारे लोग इंटेलिजेंस लोग आए और बोले जगत है, दिख रहा है ना? से आपको ऐसा रुद्राक्ष दिख नहीं रहा है? आर यू नॉट एबल टू सी इट? दिख रहा है ना? हाँ, तो अभी मैं बोलता हूं रुद्राक्ष नहीं है। एक आदमी बोलता है जगत नहीं है, एक आदमी बोलता है जगत है, एक आदमी बोलता है दुनिया में कुछ नहीं है, सब परब्रह्म ही है, और एक आदमी बोलता है दुनिया में जगत ही है, जगत के अय्याशिया है, अय्याश कर लो बस। ये अद्वैत वेदांत ही बहुत ही ट्रिकी है। वो बोलते हैं दोनों सच बोल रहे। अब वो उसके लिए पकड़ने के लिए वेदांत, हमारे गुरु आदिशंकर भगवत्पाद के भाष्य पढ़ना भी मुश्किल, क्योंकि दैट इज ऑल्सो रिटन विद ए वेरी PhD जब कुछ लिखता है, इसलिए आई डोंट यूज मच गुरु भगवान आदिशंकर महागुरु के एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट ही ट्राइज टू से जहद अजहद न्याया। अब जहद मतलब ये, अजहद मतलब, एंड ही ट्राइज टू गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस अराउंड इट। Oh, it becomes very difficult to understand how it is for the common mind. That is the reason I am trying to convert them into simple. But then I am trying to insist all this. The original source is Adi Shankar Bhagavad-pada's Divya Upadesha. So, coming back to the initial question, why you should listen? Why Guru? After connecting to the Guru, you feel good. Then why you need to connect to God? Guru is fire. Guru is food. Guru is that motivation, direction, that energy which continuously pushes you to your own personal excellence. But if you don't lubricate it with the existential intelligence, then you will be misguided by this orientation. You will be misguided by this orientation of the Guru. Any Guru, for example, Sai Baba is a Shirdi Sai Baba, fantastic Guru. भगवान अवधूत बाबा नित्यानंद ऑफ गणेशपुरी, अवधूता, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, उनकी भी बात सुनोगे यू विल बी कंफ्यूजिंग। या भागवत गीता, श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनकी बात सुनो तो दैट इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग, क्योंकि भागवत गीता जिसके लिए बताया गया अर्जुन को, उसी को समझ नहीं आया। महाभारत पढ़ते हैं तो वही बात समझ आती है, क्योंकि महाभारत में ये जो भगवत गीता है वो एक बार समझ में आती। कृष्ण ने अर्जुन के लिए पर्सनल ट्यूटोरियल है वो। अब डोंट टेल मी दुनिया का सारे गुरुओं का गुरु ने पर्सनल ट्यूटोरियल क्लास एक बच्चे को लिया और फिर भी समझा नहीं पाया, फिर भी वो गुरुओं का गुरु हो गया।
फर्स्ट गुरु वो होता है जो शिष्य की चयन करता है, यस और नो, और शिष्य की समझ लेवल के हिसाब से बताता है, यस और नो, और समझे जैसा बता पाना गुरु का टैलेंट है, यस और नो। अब उसने अर्जुन को जिंदगी भर मेंटरशिप किया, यस और नो, जिंदगी भर मेंटरशिप किए, सो बच्चे को एन वक्त पे अगर उसको ब्रह्म ज्ञान देने का समय भी उसने चुन के किया है, तब फाइनली उसको ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं आया तो हु फेल्ड? नहीं, ऐसा यू हैव टू अंडरस्टैंड। अद्वैत धर्म गोस वेरी क्रिटिकल with respect only. Are you understanding? Because if you read original Bhagavad Gita, the original and ये टीवी सीरियल्स में आजकल थोड़ा आधा आधा कट कट कर करके दे रहे, नहीं तो एक एक गुरु एक एक अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे, बट ओरिजिनल आदिशंकर भाष्य के हिसाब से, हमारे सनातन वेद वाङ्मय के हिसाब से तो डायरेक्ट भगवद गीता पढ़ना ही नहीं चाहिए। हटो, बंद करो, उपनिषद पढ़ो, उपनिषद सारे उपनिषद पढ़ो, समझ आया तो ब्रह्म सूत्र पढ़ो, फिर वो भी पढ़ो मत, उसके ऊपर भी हर उपनिषद के ऊपर श्रवणा मनना निधिध्यासना, ब्रह्म सूत्रों के ऊपर श्रवणा मनना निधिध्यासना, फिर ये सब होने के बाद भगवद गीता के ऊपर देन अगेन वो गुरु के हिसाब से श्रवणा मनना निधिध्यासना करो। सो गुरु इज दैट हार्ड फोर्स दैट पुशेस यू इनटू अ डायरेक्शन, बट यू नीड दिस lubrication or stabilizing instrument, agent, कैटलिस्ट। मैं एक ही चीज को अलग अलग, पानी बोल रहा हूँ, स्टेबलाइजिंग एजेंट बोल रहा हूँ, कैटलिस्ट बोल रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज कृष्णा's बटर बॉल इज ए ऑ इंस्पायरिंग अबाउट कृष्णा, एंड भगवद गीता इज कंफ्यूजिंग। ये क्या बोलना चाहते हो भाई साहब फाइनली, ये जब क्या बोलना चाहते हो भाई साहब फाइनली, जब इरिटेट हीट समझने के साधक को पढ़ाई करते समय स्कूल में एग्जाम्पल समझ में आने के लिए स्कूल में बच्चे को भेजते हो IIT बाने, लेकिन बीच में स्पोर्ट्स पीरियड जरूरी होता है। स्पोर्ट्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एजुकेशन बोलते हैं। वाई? स्पोर्ट्स एजुकेशन, नाउ आई एम चेंजिंग द एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स एजुकेशन इज गॉड, देवी जगन्नाथ से कनेक्ट करना। रियल एजुकेशन इज गुरु से कनेक्ट करते हुए ये समझना, किसी से कनेक्ट नहीं करना है, अयम आत्मा ब्रह्म, अपने आप के ही आत्मा से कनेक्ट करना है। अपने आत्मा की साधना करना इज लाइक रियल एजुकेशन। रियल नहीं बोलना चाहिए, क्लासरूम मोनोटोनस एजुकेशन। स्पोर्ट्स एजुकेशन मेक्स यू फिट to grasp this classroom education. So Guru also uses God to make you understand you are already God. Guru not only uses God, Guru uses other tools also, like punya karma, seva, simran. All this, Guru uses all these various tools to give you some respite to that hard training that he is trying to give. Because originally बात जितनी सीधी होती है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, some aham brahmasmi, don't you think it's the most clarifying statement on its own? That is the reason why Sanatana Dharma Adi Shankar also has given a very clear, असल महावाक्य बनने के लिए क्या क्या गुण चाहिए। उपनिषदों में बहुत सारे दिव्य वाक्य है, इन सारे वाक्यों में से उन चीजों को ही महावाक्य क्यों बोला? तो फिर देन ही जस्टिफाइड दिस इज द क्वालिफिकेशन फॉर एनी स्टेटमेंट टू बी एब्सोल्यूट एक्सेलेंस। ऑल दिस वाक्यास, ओनली दीज वाक्यास हैव दैट क्वालिफिकेशन। అంటే उपनिषद में से तुम ना 4-5 लाइन्स उठाओ, वर्ड्स, सेंटेंसेस भी नहीं। तत्वमसी इज नॉट ए सेंटेंस एक्चुअली। तत्वमसी अगर उपनिषद सही पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस में से 3 वर्ड्स उठाया। అంటే एक आदमी ने एक आदमी को अराउंड 24 वर्ड्स का सेंटेंस बताया, उसमें से 3 वर्ड्स कट करके ये एक सेंटेंस बना के दे दिया। डॉक्टर्ड ट्रूथ है टेक्निकली,
बट स्टिल उसको महावाक्य क्यों माना गया? ओ उसके ऊपर भी लॉन्ग, बट ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? गुरु से कनेक्ट करना इज द बेस्ट मेथड. गॉड से कनेक्ट करना इज दैट respite to you and awe inspire to you, a catalyst to you. But people who fall into that catalyst, Guru decides. These people are not long term or long growth oriented. God, self, Guru. It begins with Guru को ही देखना. It should progress with आत्मा को ही देखना. But it इवन बिफोर गुरु इट बिगिंस विद गॉड को देखना. पहले गॉड को देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, फिर गुरु को अप्रोच करते हैं ना. सो गॉड से गुरु, गुरु से आत्मा की इस प्रस्थान त्रय को समझने के लिए कभी कभी हम बैक स्टेप में जो लेते हैं उस प्रोसेस को ही ये साधना कहते हैं. सो गुरु को कनेक्ट करे तो बस है ना, आपको कनेक्ट करे तो भी हमें वो फील होती है ना. तो वाई आई शुड कनेक्ट टू द कलशा. इंस्पायरिंग फैक्टर भी चाहिए भैया. इतना ये लास्ट लाइन में बता दिया तो हो जाएगा ना गुरुजी बोल के आप बोल सकते हो, मुझे समझ आ रही है. लेकिन जब तक बच्चे को पूरा नहीं समझ आता है तुम कैसे मान जाओगे मैं जो बोला वो सच है? अभी मैंने लॉजिकली एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल्स, कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे बच्चे को स्कूल में स्पोर्ट्स चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश प्रमाण, गुरु गोविंद सिंह साहब या नहीं तो आदिशंकर भगवत पाद का उल्लेख करते हुए आप्तोपदेश, सब प्रमाण यहाँ पे सेट किया. अब इन सारे प्रमाणों में मेरे उत्तर तुम्हारे को श्रेष्ठ दिखेगा. पहले ही मैं अगर बोल दिया हाँ गुरु ज्ञान है, ये तुम्हारा एंटरटेनमेंट है, तो फिर गलत हो गया. गलत हो गया. मैं जो बोलना चाहता हूं उसका अर्थ ही बदल गया. गुरु तभी, गुरु का जवाब कभी भी प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और श्रुति पुराण अरे श्रुति शास्त्र सम्मता होना चाहिए. जो आंसर में इन चारों प्रमाण स्थित है वही आंसर शुद्ध है. इसलिए इतना लंबा बोलना पड़ता है. आई डोंट वॉन्ट टू इम्प्रेस यू. I don't want to make you feel that I am giving you something profound and finally you don't understand anything. You should take that answer and even dissect it. Then you should arrive at the final conclusion that I have given. That is how Bhagavad Gita was doctored. इसीलिए भगवद गीता में एक हर चीज़, दुनिया के हर चीज़ का आंसर है. फाइनली युद्ध के बीच में क्या कनेक्शन है? You understand what I am trying to say? देन सनातन महर्षियों ने बोला पहले जब तक उपनिषद और ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ोगे ये कहाँ से कहाँ क्या कनेक्ट कर रहा है, बोल क्या रहा है, इंडिविजुअल श्लोका समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. ये कहाँ से कहाँ क्या कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज गिवन बाय द हाईएस्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंटेलिजेंट परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम योर परस्पेक्टिव. गुड.